Here we invite our students of different themes. And last year we had a program of our students of 75 years and above age. We called them to share their experiences. Similarly, we invited, sometime we invited the remote and rural students. And because at that time there was no COVID. But this time because of COVID, we are having the online session. And this session is mainly meant to listen to your experiences, the online learning experiences of our students. So I invite you all, and we are very eager to listen to Sir also. He is a very learned man. So thank you very much. We will listen to Sir's talk and then our students' experiences. So now I request our honorable member of Rajya Sabha, sir, to be. So before I invite our chief guest to talk about this address, I also would like to talk about the objectives of the today's celebration. As a practice, we use every year on October 8th. We used to be have a celebration day of IGNOU Foundation Day. We used to be have it. RC Nagpur Foundation Day. We used to be celebrate. Every year we'll be having a different themes, and then we'll be inviting our IGNOU students to share their experiences, and we'll be having different themes, and then they'll be coming and sharing with us. And today we are thinking that to be our president has been thinking to be have this celebration to be have it for the to get the first experiences from the learners who have been from the various backgrounds, like from the rural areas, tribal areas, and the urban areas, how they have been having assessing their online. Now the completely university has been transforming into the online mode for the to reaching the unreach for the academic transactions, and then just we would like to be on that agenda. We just want to be have to get the information from the learners. Therefore, we have been planned to be have online meeting on the theme. We are given that online learning experience of IGNOU Nagpur. Especially, we call the students from tribal background, rural background, urban background students. What are the difficulties? What are the experiences they have faced during this COVID pandemic to continue their high studies there in the Indira National University? That was the thing, and I now request our. So, even though Sir is very well known to everyone, let me give you a brief introduction of Sir. Sir was born in 11th December 1957, and Sir is a Padma Shri awardee. He is an ophthalmologist, social entrepreneur, and Sir is very well known for his social activities. Sir has conducted several medical camps across the country, and he was born in Amravati, and he is well known for, and he is known for his charitable and social works. Mahatma Eye Welfare Charitable Trust, and how we came in contact with is Sir was there with us when we conducted our International Women's Day at Yerla village, where our rural women students they got employment. When we told Sir that Sir, our students got employment, we want to felicitate them. Sir immediately said that definitely I will come there, because this is a really good achievement for the rural women to get employment, up to with a 10th class qualification. So Sir came, and that added up their morale booster, and several others also followed in the village. Other girls also, they joined the course, they completed, and since then he was very cooperative and very supportive. He always says, I am with you. Sir, we are very much thankful to you. Sir was awarded Padma Shri by Honorable President of India in 2010, and as a recognition of Sir's contribution, Sir is now member of Parliament, Rajya Sabha, and he is heading several parliamentary committees also. Sir, we are very fortunate to have you here, and our students are lucky to listen to you, and we are eagerly waiting for your address. नमस्कार, आप सबको
मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में ही हाँ, बात करूं, ताकि हाँ, जरा मुझे चाहिए। पता है कि विदर्भ एरिया में और मराठवाड़ा के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हिंगोली, परभणी, नांदेड़ और पूरा विदर्भ, सभी हिंदी अच्छे से समझते हैं। और मैं हमारे यहाँ अभी बैठे हुए सभी डिग्निटरीज, स्पेशली डॉक्टर पी शिवस्वरूप जी, जिनके साथ हमने यानी कई सालों से साथ में हम काम भी कर रहे हैं, और उनका मैं देखता हूँ किस लगन से, जैसे सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको टेक्निकल यानी स्किल्स भी मिले, एजुकेशन यानी नॉलेज भी मिले, एटीट्यूड भी अच्छा डेवलप हो, और उनको जॉब मिलना चाहिए, इसका भी ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे रीजनल डायरेक्टर हमको यहाँ मिले हुए हैं, और यहाँ आए हुए सभी कृष्ण राव जी, देन अभी और साथ में ठाकरे जी है, शुक्ला जी है, और सभी मान्यवर, और शशि कुमार जी भी हमारे साथ में आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो इन सब के वजह से ये कार्यक्रम आज हो रहा है, जो 12th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, यानी 12 साल हो गए, एक तप हो गया है, और शिक्षा में काफ़ी बदलाव तो आया इस पीरियड में, खासकर कोविड के पीरियड में। लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कई स्टूडेंट्स को इससे लाभ हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो रूटीन यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, 12वीं के बाद, या मैं तो कहूँगा 10th के बाद से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, यानी एजुकेशन छोड़ने वाले बहुत ज़्यादा। यह क्यों है? उनकी इच्छा नहीं है क्या? उनकी इच्छा है पढ़ने की, लेकिन क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? कॉलेजेस बहुत दूर दूर हैं, और काफ़ी महिलाएं और कुछ लड़के भी जॉब करके पढ़ना चाहते हैं। तो वो आने जाने का जो समय है, या वहीं रहे बड़े शहरों में, तो यह उनके लिए बहुत मुश्किल की बात रहती है। तो यह ओपन यूनिवर्सिटी जो जिसका रीजनल सेंटर नागपुर में है, इसकी वजह से जितने स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, वो यानी मुझे लगता है यदि यह यूनिवर्सिटी नहीं रहती तो हमेशा के लिए एजुकेशन से वंचित रहते, शिक्षा से वंचित रहते। तो यह बहुत बड़ा काम ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, इसके फैकल्टी मेंबर्स को बधाई दूंगा, और सब विदर्भ जो इसका रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उन्होंने इनका लाभ लेना चाहिए, ऐसे सबसे विनती भी करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अब इसका जो मकसद था वो यही था कि एक्सेसिबिलिटी सभी के लिए रहे, और यह ज़्यादातर उस वक्त भी डिस्टेंस लर्निंग जो टेक्निक्स थे उसका उपयोग करके ही ये पढ़ाना था। तो शायद कोरोना काल में सभी ने इसका उपयोग किया होगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने मुझे पता है रिमोट सेंसिंग यूनिट का भी कभी उसके साथ में भी टाई अप करके टीचिंग ट्रेनिंग होता था, या सभी प्रकार से टीचिंग ट्रेनिंग लोगों तक के कैसे पहुंचाएं, इसकी सोच होती थी। तो अभी आपका जो ऑनलाइन है, कोरोना की वजह से है, फिर भी आप सब ने अच्छा काम किया, इसलिए आपका भी सबका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। इसमें मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ पेशे से। तो हेल्थ सेक्टर से होने से मुझे हमेशा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, और जो डॉक्टर्स काम करते हैं वह बाकी लोग भी काम कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर्स का काफ़ी सारा काम कम कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर से लेके टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बाकी पल्स, यह लेना भी डॉक्टर्स ही खुद करते हैं।
एक आध बार करना पड़ा तो वो बात अलग है, और कभी वो खुद होके भी करते हैं। तो ये सब जो है, ब्लड शुगर टेस्ट करना है तो ब्लड सैंपल लेना है, तो डीएमएलटी का जरूरत नहीं। अभी फ्लेबोटॉमी का कोर्स अपन ने शुरू किया है यहाँ पे, 6 महीने का ट्रेनिंग है, और मैं बताऊंगा आप सबको कि सबको जॉब मिलने वाला है। अब जब भी ये हेल्थ साइंसेस में जॉब मिलता है या आप पढ़ाई करते हैं हेल्थ साइंसेस की, तो उसमें मैं बताऊंगा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। इसमें जब भी कुछ हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमारी कोशिश क्या रहती है, ये पढ़ाई का, नॉलेज का, डेफिनेटली रिसर्च और बाकी पर्पस तो है ही, और बेसिक साइंसेस भी पढ़ते हैं हम ताकि कुछ प्रोग्रेस कर पाए, लेकिन उसके साथ में 3 चीज़ें और देखते हैं कि जॉब लगना चाहिए, एक चीज़ है, और जॉब में 3 चीज़ें और देखते हैं हम कि हमको पैसा मिलना चाहिए। ये तो सभी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ जो है सभी, क्योंकि वो नहीं मिला तो वो ज़्यादा दिन हम काम नहीं कर पाएंगे, तो पैसा मिलना चाहिए। ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को, मैं सबको बताता हूँ, आप यदि कानूनी तरीके से पैसा कमाते हैं तो देश की सेवा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि देश बहुत श्रीमंत है, रिच है, दौलतमंद है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। जब लोग रिच हो जाएंगे, जब लोग श्रीमंत हो जाएंगे, तभी देश श्रीमंत हो सकता है। तो पैसों के बारे में जो कानूनी तरीके से आप कमाते हैं तो अच्छी बात है, वो किस तरीके का जॉब मिलता है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। दूसरा, उसमें हमको कंटिन्यूस सीखने को क्या मिल रहा है, ये भी जॉब में देखा जाता है। और तीसरा, उसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यानी कैसे है मैं बताता हूँ। कुछ जॉब में उतना नहीं होगा, जैसे सभी गांव में रहने वाले बोलेंगे कि गांव में रह के खेती करो, ऐसा बोलने में आसान है, लेकिन वो काम यदि आप कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा यदि आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जब आप एप्रन पहन के ब्लड सैंपल निकालेंगे तो उसमें एक सम्मान मिलता है, जो मेरे ख्याल से बाकी सभी ब्रांचेस में उतना सम्मान नहीं है। तो इसलिए अभी जो कोर्सेस आप लोगों ने जो निकाले हैं, जेरियाट्रिक असिस्टेंट करके निकाला हुआ है, फ्लेबोटॉमी का है, जनरल हेल्थ असिस्टेंट करके है, तो इन सब का लाभ लीजिए, यह आपको काफ़ी तक के सामने लेके जाएगा। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ में यहाँ जो शिक्षा होती है, इसमें हम नॉलेज तो मिलता ही है, लेकिन सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। एक्सेलेंट नॉलेज इज गुड, बहुत अच्छा है कि आप नॉलेज आपको मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट इनफ। नॉट इनफ का ENE बोलता हूँ मैं, एक्सेलेंस नॉट इनफ। यानी जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो एक सब्जी 2 सब्जी बहुत अच्छी बनी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा खाना उससे नहीं होने वाला। वैसे ही हमें साथ में नॉलेज के साथ में कुछ चीज़ें चाहिए जिसके ऊपर जोर देना चाहिए। वो दूसरा है कि कौशल, कसब, स्किल्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने काफ़ी इस पे जोर दिया हुआ है, और भी स्किल ओरिएंटेड ये जो सभी पैरामेडिक कोर्सेस है वो स्किल ओरिएंटेड है। और अपना जो रीजनल सेंटर है इग्नू का, वह भी इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। स्किल और नॉलेज में फ़र्क ऐसा है कि स्किल्स में आपको करना है खुद। मैं कई बार बताऊंगा कि भाई एक आध बार ऐसे है कि हम, जैसे कारपेंटर है, उसने यदि टेबल बनाने के लिए आप पढ़ते हैं कि लकड़ी कौन सी यूज़ करना, ये करना, तो वो आप पढ़ के लिख सकते हैं, मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन मैं यदि बोलूँ टेबल बनाओ तो वो नहीं बना पाएंगे। और एक कारपेंटर जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो टेबल बना के अच्छी वाली लकड़ी यूज़ करके अच्छा टेबल भी बना के। तो ये जो बात है, जैसे मैं सबको बोलता हूँ, काफ़ी बार ऐसे होता है कि BSc एग्रीकल्चर खेती नहीं करते, तो ये जो डिफरेंस है इसमें समझें। अभी हमने समझा हुआ है,
स्किल का इम्पोर्टेंस नॉलेज इतना ही है, और यह प्रैक्टिस से होता है, और इसके तरफ भी उतना ही ख्याल देना चाहिए जितना हम नॉलेज की तरफ देते हैं। वैसे ही तीसरी बात है जिसके तरफ हम जिसे भूल जाते हैं, वो है एक एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी क्या? तो अपनी सोच कैसी है, अपने इमोशनल भावना अपन कैसे मैनेज करते हैं इमोशंस, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे टीम में बहुत होशियार था एक हमारी टीम जो थी उसमें होशियार डॉक्टर था, लेकिन वो पेशेंट पे बहुत बार चिढ़ता था, मीटिंग में बैठे तो गुस्सा आता था। अब उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये टीम में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो नॉलेज स्किल्स के साथ में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। हम साथ में कैसे काम कर पाएंगे, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, यानी थिंकिंग स्किल लगता है उसके लिए, क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, उसका भी एक महत्व है। वैसे ही भावनाओं का तो मैंने बताया ही आपको। और कई बार मैंने देखा है कि काम कैसे कर पाएंगे इसके बारे में सोचने के बजाय काम क्यों नहीं हो रहा इसी पे ज्यादा सोच होती है, तो काम कभी कर नहीं सकते। There may be 100 reasons why the work cannot be done, but I want only one reason how it can be done. तो इसके लिए मुझे ऐसा हमेशा लगता है, ये जो एटीट्यूड है यह डेवलप करने का काम है, वैल्यूज का काम। ये वैल्यू है कि मुझे काम करना है और यह करके दिखाना है। कोई भी काम एक आध आदमी की तरफ दो तो आप बोलेंगे उसके तरफ काम दिया है निश्चिंत रहो, और दूसरे के तरफ दो तो बोलते नहीं वो नहीं होने वाला, वो उधर कुछ काम नहीं करेगा। तो ये पहले अच्छा लगता है कि मेरे तरफ कुछ काम नहीं आ रहा, मुझे तो अच्छा लगे, लेकिन आपका स्किल कम होता है, प्रैक्टिस से ही स्किल्स बढ़ते हैं। तो इसे हम समझ लें। और मुझे पता है कि इग्नू के अपना जो रीजनल सेंटर है यहाँ का, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसमें स्किल्स और एटीट्यूड की तरफ भी ख्याल दिया जाता है। मैं ये चाहूँगा कि इसका भी असेसमेंट भी हो, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन असेसमेंट होना ज़रूरी लगता है, क्योंकि बाद में जब भी हम लाइफ यानी ज़िंदगी जीते हैं तो यह सभी चीज़ें का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो यह सिखाया जाए और उसका असेसमेंट भी हो, लेकिन आप भी सभी इसके तरफ ख्याल देंगे ऐसा मुझे लगता है। मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सबको ये 12th फाउंडेशन डे का जो दिन है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छा लगा सर, आपने तो पूरा लिस्ट बताया, हमारा स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन दिलाया आपने। जो स्किल्स क्या चाहिए वो तो नॉलेज की तरफ ही देते हैं, तो आपने बताया ये स्किल्स भी चाहिए, मोर ओवर सभी क्वालिफिकेशन भी हो, स्किल्स भी हो, एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम सुनेंगे हमारा स्टूडेंट्स का। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शशि कुमार टू carry on the students' instruction. So we will be hearing, and sir also will listen to whatever you are saying. So now we will be calling one by one. We will start with the Shukla sir. Okay. Shukla is 80 years. Yeah, maybe we start with the from the student who will be joined with us on the face-to-face. I request Dr. Shukla sir, who is the Psychology student and 80 plus years, sir. After introduction, he is 80 plus and joined for he is completed different programs there with IGNOU, and now he is pursuing his master psychology program in there in IGNOU. More active in online activity. And I will just request Dr. Shukla sir to be share his experience first. थैंक यू वेरी मच। हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में? Hindi, English, Marathi. अच्छा, नाउ
I joined this course with the interest to know more about the psychology. Dr. Shiv Sarup more or less initiated me to this particular course. I was hesitant as per my age. I thought that I may not be able to understand the subject, I may not be able to grasp the subject. And secondly, the subject, the assignments were there and assignments were to be written. Now, throughout my whole life, I had assistant to help me, stenos to help me in writing other things. So in my 50 years of service life, I never wrote a single word, only dictated. So I was afraid. I discussed it with Dr. Shiv Sarup. He said that don't worry, you try. Now I found that the first year 6 assignments I wrote. My handwriting improved, my thinking improved, and secondly, I understood that I could grasp the subject in a proper manner. I remember, because of age, I thought that I may be forgetful. Luckily, by grace of God, whatever I read once, it goes to my brain directly. I don't have to read it again. So like that, I completed the first year, then started second year. Then second year had difficulties because of this COVID. The online courses were there of 2 hours duration, and it means total 12 hours and 4 hours for practical online. Now the difficulty of online training is that when the teacher teaches, you don't have any direct contact with him. You have to listen, and then whatever he says, you have to write up or keep it in your memory. Secondly, sometimes the teacher, I'm very sorry to say, they will not stick to the subject matter. They will go out of the subject matter. Then some students who are there online, they are more intelligent. So they will grasp the time or whatever are there, and the teacher will be sidelined. That is difficulty I found. Secondly, teacher-student interaction is very important in learning, and that I found missing in online training. What happens that the teacher goes on talking, discussions will be there, and he won't be able to gauge the student standard, how much student is grasping, how much he is learning. So I think improvement on that particular line is very important. Secondly, the time limit given is 2 hours. Usually, I am a teacher, or I was a teacher. 45 minutes teaching is always better. Student can grasp, understand, write, repeat. But 2 hours attention is really very difficult. So it should be divided into 3 or 4 different parts, and then there must be some type of test for the student also. Meanwhile, how much he understands, that is lacking on online training. So that way, whatever student learns, I think it is not sufficient. Teacher-student interaction, as per in class, several students are there, they understand, they discuss, the teacher also discusses with the student, and that way the grasping power of the student increases. So these are the difficulties I found in online training. But I am very happy that though the age factor was there, but it never came in my way. Whatever I wanted to learn, I learned. And I am now very happy that because of the help of IGNOU Center, Dr. Shiv Sarup in particular, I could go ahead in my course. So I thank Dr. Shiv Sarup for that. Thank you very much. Online learning has helped you to listen to various regional centers experts also. Correct. Thank you. I want to say something about Dr. P.T. Shukla. He stayed in UK for 20 years as a scientist. He's a microbiologist. Then he worked as a principal and acting VC for Anand Dairy University. Then he settled in Nagpur. We are lucky to come in contact with him.
सर तो वैसे बात करते थे, इतने साल से हमारे टच में हो तो उनको भी इंटरेस्ट है, मैं भी कुछ कोर्स करूं, क्या करूं पूछा है। वी एनकरेज दैट साइकोलॉजी में भी बेटर, तो एडमिशन लिया है। सर के बारे में बोलना ही इज 80+, बट फिर भी असाइनमेंट लिखना है तो वो 2 बार लिखते हैं। पर वो बोल रहे हाँ, थर्ड टाइम फाइनल करके असाइनमेंट सबमिट करते। तो मैं तो बोलता हूँ ये स्टूडेंट सभी को ये एक सीखने की मॉडल है, इसलिए सर को हमने बोला तो सर ने बोला मैं नागपुर में हूँ, मैं आ जाता हूँ रीजनल सेंटर। सो ही इज हियर विथ अस। और ये जब ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुंबई रीजनल सेंटर का भी साइकोलॉजी क्लास सुनते हैं, कलकत्ता आरसी का भी सुनते हैं, दिल्ली आरसी का भी सुनते हैं, नागपुर का भी सुनते हैं, देहरादून का भी। और ये ऑनलाइन एडवांटेज ये है, अभी तक तो आप सिर्फ नागपुर का ही लेक्चर सुनते थे, अभी तो ये ऑल ओवर इंडिया कभी भी लेक्चर्स होते हैं, आप सुन सकते हैं। सर मुझे फीडबैक भी दे देते, ये फलाना कलकत्ता का ये लेक्चरर अच्छा है, बॉम्बे का ये लेक्चरर अच्छा है। It gives a feedback I used to share with my colleagues of the respective regional centers. So we are thankful to you, sir, at this age, and he took interest to come here and share his experiences. So we will proceed with we are going in a district alphabetical order. So Dr. Shashi will call your name. आप आके आपकी experience share कर दीजिए. Now I request Mr. Dhananjay Ramrauji Bhote to be share your experiences from Amravati district. Yes, sir. Yes, sir. जी नमस्कार. अब बात करें. Namaskar, sir. जी. Good afternoon, my respective sirs, madam, and other friends. Myself, Dhananjay Ramrauji Bhote from Amravati. I am a civil engineer. I am working in Amravati. I am successfully completed number of course in IGNOU University. That's like a post-graduation course in geoinformatics, urban planning and development, and rainwater harvesting. And this course I successfully completed after I use my working field. So is a nice course in a university related to my civil work. And this university education technique is very good. That corona disease time, this university online conducted classes is very nice, teaching very good, and clear the doubts all students, and guide to the assignments and practicals. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, मराठी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर, ओके। ये रीजनल है ना, नागपुर का ही, इसलिए आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बोल दीजिए। बोला काही हरकत हाँ। नाही. ओके 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 बोलो। सगळे समजतात. हाँ। सर, मी इग्नू मधून जे कोर्सेस केले ते मी माझ्या म्हणजे टेक्निकल फील्डमध्ये जे सिव्हिल इंजिनियर आहे त्याच्यामध्ये ते यूज करत आहे सध्याला, आणि त्याच्यामुळे माझ्या स्किल मध्ये पण प्रोग्रेस झालेली आहे. चांगलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मला कसं आहे, मी जे कॉन्ट्रॅक्टरशिप करत होतो, जे हे कोर्स करून मला जे टेक्निक शिकायला मिळाली ते मी तिथे यूज करतो. त्याचा मला फायदा पण झाला, इकॉनॉमी पण झाला आणि वर्कमध्ये पण झाला. अरे वा. तसेच हे क्लास म्हणजे कोर्स करत असताना युनिव्हर्सिटीकडून जे टीचर लोक होते ते व्यवस्थित गाईडलाईन करत होते, काही प्रॉब्लेम आला तर सॉल्व्ह करत होते, आणि म्हणजे व्यवस्थित माझं पूर्ण कम्प्लीट झालंय. 3-4 कोर्स केले आहेत मी या युनिव्हर्सिटीमधून. मला व्यवस्थित वाटलं, चांगलं वाटलं. आणि सर, एक माझं पर्सनल एक थिंग सांगायचं आहे. मी लॉला ऍडमिशन घेतली आहे मागच्या वर्षी. तर आमची सेकंड इयरला एक्झाम झाली नाही अमरावती युनिव्हर्सिटीमध्ये, आम्हाला प्रमोट केलाय. पण मला इग्नू मध्ये एक्झाम द्यावी लागली, आम्हाला प्रमोट नाही केलंय. चांगलं आहे. आणि कसं आहे सर, म्हणजे कोणी पण या ऍडमिशन घ्या पास होऊन जा असं नाही आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये. तुम्हाला काही ना काही सिरियसली करावंच लागेल. ओपन युनिव्हर्सिटी आहे म्हणून काही पण केलं तर चालेल असं नाही आहे या युनिव्हर्सिटीमध्ये. मी बाकीचे पण इफ यू गेट सर्टिफिकेट जर इथलं मिळालं तर तुम्ही चांगलेच आहात असं कळतं. वा. तर त्याच्यामुळे मला व्यवस्थित वाटलं सर. युनिव्हर्सिटीचं काम असं एकदमच असं काही हे नाही आहे, खूप चांगलं आहे. मी तर ॲज कम्पेअर टू बेटर युनिव्हर्सिटी म्हणतो की रेग्युलर युनिव्हर्सिटीपेक्षा. अरे वा वा. थँक्यू.
मुझे प्राउड संपर्क करना। और थैंक यू धनंजय जी, बहुत अच्छा बोला है आपने। आई होप जो आपने कोर्सेज किया है वो आपको यूज भी हो रहे हैं आपकी सर्विस में, फाइनेंशियली है ना? भी उन्होंने बताया कि Yes, sir. Yes. हाँ, बहुत हमें अच्छा। भी आ रहा है और फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल रहा है। थैंक यू धनंजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है now- धारनी से अभयंकर मीना, वो है अभी लाइन पे। गौतम रेचन गेरन जी, गौतम जी, गौतम रेचन गिरन जी। है क्या? हाँ गौतम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। गौतम जी आप अनम्यूट करो। रेखा शर्मा मैडम आई थे। हाँ गौतम जी, आप शेयर कर सकते हो, आपको व्यू शेयर कर सकते हो। नहीं तो दूसरा को भी बुला लो जो आते हैं वो बात कर ले। I request Komal Bajaj. Loading from. बजाज जी से। I request Komal. Yes, sir. हाँ जी, आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Sir, I would like to share my thoughts that our teachers have taken extraordinary steps to let us learn during the lockdown. Otherwise, we would have faced a lot of loss in our studies. So that is really very appreciable. Also, the regional center is always available for us whenever we face any issue. We can directly go and they never refuse help. They always give us their whatever they can. So it is very good experience to learn in IGNU, and it is really way better than the regular universities. Okay, that's क्या what course I कर रहे want to share. PGDSC. एनालिटिकल केमिस्ट्री। Yes, sir. Where do you stay? आप कहाँ Sir, रहते I am Gondia, Maharashtra. गोंदिया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। You had a very good experience and you have shared Yes, it. sir. Thank you for that. Your inputs are very valuable because the regional Dr. Shiv Swarup ji is always ready to improve. So definitely, Yes, sir. we will try। Thank you. Thank you, Thanks Komal for ji, that। and thank you. Now may I request Milind Bojraj Rangari to be share your view. Milind ji, Is from Bolivia. हाँ जी, मिलिंद जी, हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं जी, आपका व्यू, आपको ऑनलाइन Thank you, एक्सपीरियंस sir. कैसा हुआ, हाउ डिड यू परस्यू योर प्रोग्राम ड्यूरिंग द कोविड टाइम, आप बात कर सकते हैं जी। The chief guest of the program, Honorable Padma Shri जी, जी, Dr. जी, Vikas जी। Mahatme, sir, and IGNOU Regional Director, Honorable P. Shiv Swarup sir, and all respected sir and ma'am. I am Milind Rangari, District Councillor, District Institute of Education and Training, Gondia, and native from Amgaon, which is in Gondia district. Amgaon is very rural area. I am a psychology student in IGNOU. The sudden outbreak of a disease called COVID-19 shook the world, and it is pandemic. Sir, this situation challenged the education system across the world and forced educators to shift to online mode of teaching and learning. In such time of crisis, IGNOU also changed mode of education on online. While online learning, we carries many positive benefits for me. Basically, I am from Amgaon, district Gondia, which is near about 200 kilometers away from the Nagpur. In such COVID situation, all transporting vehicles like trains, buses were closed. Then how can I attend classes in Nagpur? So online classes are very beneficial for me in such condition. Again, I saved much more time of traveling, that is 3 to 4 hours of time to attend physical classes from Amgaon to Nagpur. Again, there was some fear in my mind about spreading corona
and some other contagious diseases. So, due to these online classes, we saved and protect myself. I saved and protect myself from COVID and other diseases also. Online classes also helps the people they doing job. It became very easy for me to learn a lot of things or a lot of content in my house or in office by Google Meet or Zoom app online. So I learned and enjoyed all classes. All classes were held on Saturday and Sunday by the availability of lecturers and their timing, mostly 3 p.m. or 4 p.m. or some classes on 11 a.m. also. I was told that I am a psychological student. The theory classes of pathology, psychodiagnostic, and psychotherapeutic method are held most effective. And internship and projects also they held online. Most counseling skills was held by Sima Fageman also. That class also very effective and beneficial for me. All classes that is, but every Sunday a good seminar was there. That is the interaction with IGNOU students. That is Regional Director, Honorable Dr. P. Sivaswarup sir, on Facebook Live. So all queries were solved in that session. So I am grateful to have such IGNOU team, that is a director sir and all lecturers. And thank you sir. Thank you, Thank you so Milind. much, Thank sir. you. Yeah, thank you. Really, your the way which you expressed is really enlightened to us, and then we also that was our intention to be reach the that background district like Gondia, Gadchiroli. These are the areas we have been concentrating now, and then your experiences really will help us, and we also feel very like yes, we take it up to be taken up further to be reach the Gadchiroli district. That's what we comes to know from your side, and we need your help also to reach the unreach over there in that particular district. And being a district education officer, you can help us. And thank you so much for your feedback. We are Thank you, sir. really Thank happy you. to be in touch. Yeah, yeah. And now I request Manishka ji, Manishka Vaikat. Manishka Vaikat. Manishka Vaikat. Manishka Vaikat और गौतम जी आप बात कर सकते हैं. यस गौतम जी. हाँ जी आपको बताइए आप. You can share your experiences, Gautam ji. Seema ji, Seema Rathod. Yeah, Juveria Khan. Yes, please, ma'am. You share your. Yes. Yeah. Yeah, very nice. Hi, sir. Good evening. And first of all, I'd like to thank Dr. Sivaswarup sir for giving me an opportunity to speak in front of Vikas sir. And I'm really glad to have been gotten the opportunity to be associated with IGNOU. I have been in talking terms with Sivaswarup sir since my time in Times of India. I've been associated with the Times of India since 2016. Previously, I worked there as a field reporter, and since 2 years, I'm looking after features. So during press conferences, I used to come to IGNOU and observe the the process and understanding that there is age no bar. I could see students coming from all age groups. Even during the conversation, even during the convocations, there was a mixed crowd, and that always fascinated me, and it motivated me to study more. So I am an engineer. I did not have a formal degree in journalism as such before. So after 4 years of experience in journalism, I thought that maybe this is the time. It's the pandemic, everything is locked down, but one thing which is sailing through is the education system. So why not make the most of it? And that is the reason I got in touch with Sivaswarup sir, and then thought of doing a PG diploma in journalism.
which I thought would be a piece of cake because of the experience that I have, but it was something, you know, really widening my horizons. It was something really needed, and I think कि practical experience के साथ एक theoretical knowledge भी होना जरूरी है, जो जैसे कि कोई अगर 30 years of news experience में भी अगर आप उसको theoretical question ला के दे देंगे कि what are the elements of news, so I think ये बड़ा पेचीदा question हो जाता है जो नहीं आंसर कर पाते हैं। और प्लस एक हिस्ट्री जानने को मिली कि सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, और पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म का क्या नाता रहता है। ऑब्वियसली थियोरेटिकल नॉलेज को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकल ही सब कुछ है, एक बेस फॉर्म करता है थियोरेटिकल, जो आई थिंक कि इग्नू के कोर्स से आई हैव यू नो शेड अ लेयर as an individual. It has enhanced my professional skills and I feel confident now when I walk into office that I feel that I stand somewhere, even though even abhi mera result aane ka hai, but still I can say कि it has made a huge difference in my professional career already. And special mention to Rajesh ji, in charge of the admissions here in Nagpur. He was always available, even जब उनकी फैमिली में भी इशू चल रहा था तो वो हर मेरा कॉल उठाते थे, कोई भी टेक्निकल इशू होता था, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन से रिलेटेड बुक्स मेरी अगर नहीं आई है तो हर चीज के लिए सर वाज अवेलेबल, एंड इनफैक्ट शिव स्वरूप सर आल्सो, एंड जो मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे आशीष दुबे सर, वो भी हर कॉल पे अवेलेबल थे। वैसे 6 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक हमारा ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, बाकी के जो सिलेबस था वो मुझे खुद पढ़ना पड़ा, लेकिन जो लैंग्वेज यूज हुई है वो बहुत कॉन्वर्सेशनल है, तो इट्स एज गुड एज द टीचर इज टॉकिंग टू यू। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत टेक्निकल चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत लेमन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। प्लस यूट्यूब पे जो हमारे जो नेशनल कोर्स कोऑर्डिनेटर है शिखा राय, उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, तो स्टडी मटेरियल भर के कूट के आपको हर जगह मिलेगा। इट्स जस्ट आस्क एंड यू शैल रिसीव, वो वाला सीन है यहाँ पर। तो हमारी स्वयं पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो एक हम लोगों ने ऑनलाइन सबमिट किए थे सारे असाइनमेंट्स, बट बाकी के जो असाइनमेंट्स थे वो हाथ से लिखने पड़े। वो इंजीनियरिंग में भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने यहाँ पर 4 साल की इंजीनियरिंग से ज्यादा मैंने ये 1 साल के कोर्स में मेहनत की है। तो ये कोर्स का ये फायदा है कि लैटरल एंट्री मिल जाती है आपको, जैसे मेरा पीजी डिप्लोमा है 1 साल का, तो इससे मुझे लैटरल एंट्री मिलेगी 2nd ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन के मास्टर्स में। तो अगर मैं चाहती हूँ दैट आई कैन कंटिन्यू माय स्टडी, तो वो एक बहुत अच्छा, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है जो इंट्रोड्यूस हुआ है इग्नू में। प्लस असाइनमेंट्स के कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे कि ऐसे गूगल पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं थे, बहुत थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व था। लाइक लिटरली 6 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस थे, तो टोटल 6 5 30, तो 30 क्वेश्चंस के लिए मुझे 1.5 दिन कम से कम रिसर्च के लिए लगता था और 1 दिन ड्राफ्टिंग के लिए लगता था, और उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस होने के बाद मुझे लिखना था, तो कम से कम 1.5 महीना गया। एक अच्छा, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स था, एंड दैट्स नॉट इट। इसके बाद में एक प्रैक्टिकल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म में, तो एक प्रोडक्शन पोर्टफोलियो तैयार करना था जिसके अंदर न्यूज़पेपर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, न्यूज रिपोर्ट्स लिखनी थी, फील्ड पर जाके रिसर्च करना था, प्लस रेडियो के बुलेटिन्स हो गए, बाइट्स हो गई, वो रिकॉर्ड करना था। फिर टीवी जर्नलिज्म के हिसाब से था जिसमें मैंने सड़क पर जाके ऑटो वालों से मैंने बात की थी कि पैंडेमिक का आपके ऊपर क्या इफेक्ट है, फिर उसको मैंने पैच किया स्टूडियो सेटअप किया था घर में, उसके विजुअल्स के साथ में, आउटडोर के विजुअल्स के साथ में। तो बहुत, मतलब 1 साल का मास्टर्स में कह सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, एंड काफी कॉन्फिडेंस मिला इस चीज में। एंड आज में अगर मैं स्टॉल, और बेसिकली जो अरुल सेवलन सर थे जो क्लासेस लेते थे, काफी जितने जो फैकल्टी मेंबर्स थे सब अपने पोजीशन में, सब अपने फील्ड में, अपने डोमेन में स्टॉलवर्ड्स हैं यहाँ पर, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। and being associated with such jury is such people is only, you know, बहुत बड़ा चीज होता है आपके करियर में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, and I look forward to further association with IGNOU. Thank you, Jiviraji. Thank you so much for your positive thing, and then really inspires our IGNOU learners that to be to pursue the program successfully there in the IGNOU. And then if you say that since you are there in the professional, you have been telling that how you have been
work out for your assignments, and then how you have been drafting and how much time you have taken. It's really good and nice to hear from you. And thank you. Now I request Seema ji to Thank be you so much, sir. Seema Rathoji. Seema Rathoji can be share your experiences. Miss Seema Ratho, Manisha ji, Manshika. हेलो हाँ जी सीमा जी बात हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी सीमा जी आप बताइए आपको बारे में बताइए आप हाँ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सीमा जी good evening to all firstly I thank to IGNOU University and the regional center of IGNOU Nagpur for giving us opportunity and all centers to study in the way of distance education. Thank you, sir. I'm from Hingoli, and my center is Nanded, and now I'm studying in MSW, and I'm doing that course of MSW, and I'm now studying in second year. सर मी सध्या आता प्रवासातच आहे त्याच्यामुळे थोडा आवाज येईल पण याच्यासाठी थांबले की माझा एक्सपिरियन्स जो आहे अनुभव शेअर सगळ्यांशी करता येईल याबद्दल आणि ही संधी दिल्याबद्दल देखील मला सगळ्यांचे आभार मानावेसे वाटत आहे सर जे ऑनलाईन आपण जाणतच आहोत की काय मर्यादा असतात ऑनलाईन स्टडी आणि ऑनलाईन लर्निंगच्या तरी पण देखील आणि या अशा कोरोनाच्या महामारीमध्ये देखील आपलं हे डिस्टन्स एज्युकेशन जे दूरस्थ शिक्षण आहे इग्नूद्वारे जे वेगवेगळे कोर्स आहेत अभ्यासक्रम जो आहे आणि त्यानुसार अगदी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ऑनलाईन क्लासेस अगदी वेळेनुसार घेतल्या गेले आणि आम्ही ते अटेंड केले आणि खूप छान प्रकारे नांदेड सेंटरच्या ज्या मॅम होत्या त्यांनी आम्हाला खूप छान तऱ्हेने ऑनलाईन एज्युकेशन दिलं खरं म्हणजे तर ऑनलाईन क्लास जे घेतले खूप छान तऱ्हेने त्यांनी शिकवलं आम्हाला आणि पर्सनली जेव्हा आम्ही कॉल किंवा मेसेज वगैरे करत असू किंवा वैयक्तिक भेटत असू सेंटर्सवर जाऊन तेव्हा त्यांची जी मदत होती ती खूपच अशी चांगल्या तऱ्हेने त्यांनी मदत केलं की खरंच आणि ज्या ज्या समस्या आम्हाला भेडसावू लागल्या किंवा आम्हाला काही त्याच्यामध्ये प्रश्न किंवा प्रॉब्लेम्स येऊ लागले त्या त्यांनी तिथल्या तिथे अगदी त्वरेने असं ते सॉल्व्ह केलेले आहेत सोडवलेले आहेत आणि त्यासाठी इग्नू रिजनल सेंटर असो किंवा आमचं नांदेड सेंटर असो त्याचे सर्व आम्हाला सहाय्य करणारे मार्गदर्शक शिक्षक असो स्मिता मॅम स्पेशली त्यांनी आमचं ऑनलाईन क्लास घेतला आणि खूप छान तऱ्हेने आम्हाला खूप चांगला अनुभव मिळाला असं वाटलंच नाही की आपण ऑनलाईन हे क्लास करतोय अटेंड करतोय असं वाटत होतं की पर्सनली किंवा एकदा वर्गामध्ये कसं शिकवलं जातं अगदी तसाच फील आला आम्हाला अनुभव तसाच आला आणि खूप छान तऱ्हेने त्यांनी आम्हाला शिकवलं आणि आमच्या ज्या कन्सेप्ट्स आहेत त्यातल्या संकल्पना थोड्या काही अमूर्त अशा असतात की ज्या आपल्याला नेमकं नुसतं वाचूनच त्या कळू शकणार नाहीत त्या त्यांनी अगदी सोप्या तऱ्हेने खूप छान तऱ्हेने आम्हाला शिकवल्या त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप आभार आणि इग्नूचं स्पेशली ज्या इग्नूच हे असं ओपन युनिव्हर्सिटी आहे की त्यामध्ये खूप सारे कोर्सेस आहेत जे की शहरी विभाग असो किंवा ग्रामीण विभाग असो कितीही कोणत्याही स्तरावरील कोणत्याही याच्यामधले स्त्री असो किंवा पुरुष असो घरी हाऊसवाईफ असतील किंवा नोकरी करणारा पेशा कोणतेही पेशा करणारे किंवा छोटे मोठे व्यवसाय व्यापार करणारे असो त्यांना देखील जेव्हा केव्हा त्यांना शिकायची इच्छा होते आणि ती इच्छा पूर्ण करणारी युनिव्हर्सिटी म्हणून इग्नू हे आपण आधीपासूनच खूप वर्षापासून नावाजलेली आहे ओळखतोय आणि यापुढेही ती अशीच काम करत आहे आणि याचा अनुभव आम्हाला आता आलेला आहे त्याबद्दल इग्नूचे खूप खूप आभार आणि माझा जो अनुभव आहे तो खूपच चांगला आलेला आहे छान तऱ्हेने त्यांनी शिकवलं आणि थँक्यू सर वन्स अगेन thank you very much to IGNOU University and Regional University of Nagpur and also Nanded Center also. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. यानंतर शेवटच्या टप्प्याला आपण पोहोचलेलो आहे धन्यवाद प्रस्तावाचा वेळ आलेला आहे मी चंद्रशेखर राजगुरे तुम्हाला धन्यवाद प्रस्ताव सादर करतोय ॲट द आउटसेट आय थँक ऑनरेबल डॉक्टर विकासजी महात्मेजी for his gracious presence at this 12th anniversary program of the establishment of Nagpur Regional Center.
I also thank our regional director, Dr. Shiva Swarup, for taking uniting efforts to the program of this center. I am also very much thankful to Dr. Krishna Rao, regional director, sir. I am very much thankful to Dr. Sasi Kumar sir, Dr. P.T. Shukla sir, Dr. Thakre sir, and I thank all the learners who actively participated in this virtual meeting and shared their learning experiences. I thank all the staff members of this center for their support in arranging the program. I am very much thankful to all of you. Thanking you once again. Thank you.